ओके, सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक ठाक चल रहा है तो हाँ ओके स्टार्ट होगा। So hello everyone, welcome to Learning Overland YouTube channel and welcome to the new series of Overland. First of all, many of you are asking about Junior Science Olympiad, so we will start this series of Junior Science Olympiad. Here we will discuss first of all, today's video is basically regarding what is Junior Science Olympiad and how to prepare for Junior Science Olympiad, these things all, and how I basically prepare. All these things we will discuss today, and then we will start a series of lecture series just like for Junior Science Olympiad. That would be beneficial for you who are waiting for this video. Like and comment and share this channel for more, because this channel is for you all. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर साइंस ओलंपियाड क्या होता है आप सबके लिए। पहले तो माइक आप सबने कहे थे तो हम माइक भी ला लिए हैं, तो ओके लाइक तो बनता ही है यदि अच्छा लगा वीडियो को। तो या जूनियर साइंस ओलंपियाड का जो फर्स्ट सिनेरियो है, ये ओलंपियाड बेसिकली एक साइंस एप्टीट्यूड का बहुत ही बेहतरीन एक एग्जामिनेशन है। ठीक है, इसको मतलब जो स्टेजेस है या कैसे एग्जाम होता है, तो फर्स्ट स्टेज इज NSHS नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस ओलंपियाड व्हिच इज कंडक्टेड बाय आवर टीम ऑफ IIPT कंडक्ट करते हैं। ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर ये कंडक्ट करते हैं जूनियर साइंस एंड पेपर भी बनाते हैं यही। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दो सेक्शन रहता है। बेसिकली ये पेपर MCQs के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो सेक्शन ए मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शंस, जहाँ पे एक क्वेश्चन दिया रहता है, ABCD ऑप्शन चारों दिया रहता है, इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सेक्शन ए में आपको मिल सकते हैं। जस्ट लाइक सेक्शन ए पे ABCD ऑप्शन दिया रहा है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो ओनली ए ऑप्शन ही पिक करना रहता है। बट इन सेक्शन बी देयर more than one option is correct, and ABCD both three options are correct, so you have to pick three options. First of all, in section A and section B you have different marking scheme also. In section A +3 -1, that means the negative marking is included in your section A. +3 is means for the positive marks you get, or if you this option is correct and you put also this option A, then you get correct, then you get +3 marks, and if you put it as wrong option then you get negative marks, that is -1 from your corrected marking. Okay, and for the unattempt, if you unattempt the question then you get 0 marks. In case of section B +60, that means here basically ABCD, here if you put these ABC options all is correct, then you get +6 marks. If you put that BC not A, then you get 0 marks, that is wrong option, no partial marking is given. Okay, and yeah similarly, so wrong option के लिए आपको 0 मार्क मिलेंगे सेक्शन बी पे, एंड for correct option you get +6 marks, and for unattempting you get 0 marks. Basically I will discuss all these things. This is the NSHS pattern. सिलेबस रहता है, सिलेबस मैं बात में कहूँगा क्योंकि सबका सिलेबस एक ही रहता है। तो आउट ऑफ दिस पेपर given by 1 to 2 lakh students, so out of these 1 to 2 lakh student only 300 to 350 students are selected here. 300 से 350 स्टूडेंट ही सिलेक्ट होता है, वो अटेम्प्ट करता है सेकेंड स्टेज जो कि INJSO इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, ये कंडक्ट करते हैं हमारे होमी भाभा के द्वारा, जैसे कि HBCAC होमी भाभा साइंस एजुकेशन। ठीक है, होमी भाभा के द्वारा INJSO कंडक्ट होता है। इस पे ये पैटर्न तो रहता ही है MCQs का जैसे रहे, उसके अलावा आपके पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी रहता है।
सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे आपको व्हाट इज या डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, जस्ट लाइक व्हाट इज बायोफ्यूल, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन मत करना। क्वेश्चंस आएगा क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल माइंड थिंकिंग एंड क्रिटिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पे आएगा, ब्रॉड कैलकुलेशन, ओके। And here partial markings are given, and if you search in a PYQ series of INJSO or past papers of INJSO, then you find this, that 1 plus, half plus, this is a partial marking scheme, okay. So in this, out of 300 to 350 those are attempting for INJSO, out of these only 30 to 35 students are selected. These 30 to 35 students, those who are selected, they are, उन सबको भेज दिए जाते हैं ओसीएससी कैंप पे, जो कि होमी बाबा के सेंटर पे तारापुर पे होता है, वो में तारापुर पे, तो ओसीएससी कैंप वहाँ पे होता है। तो बेसिकली एस्ट्रो का अलग जगह होता है, बट जूनियर साइंस के लिए ओसीएससी कैंप तारापुर पे ही होता है। तो वहाँ पे सभी एक्सपेरिमेंट सब कुछ सिखाएंगे, 15 दिन से 1 मंथ के बीच पे सब कुछ टोटल सिखाएंगे आपको एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि अब सब ऑलरेडी रिटन एग्जाम फोड़ दिए हैं, एमसीक्यूज फोड़ दिए हैं, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट सिखाएंगे बहुत सारे। तो उसके बाद प्रैक्टिकल्स बहुत सारे कराएंगे। उसके बाद आपको पीडीटी, प्री डिपर्चर कैंप रहता है। इन दिस पीडीटी these 30 to 35 students are testing happens। तो यहाँ पे 15 से 1 मंथ के अंदर जो जो कुछ भी सिखाया है, दैट मीन्स योर एक्सपेरिमेंट नॉलेज यहाँ पे चेक होता है पीडीटी पे। यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव नॉलेज चेक होता है, आपके एमसीक्यूज रिलेटेड नॉलेज भी चेक होता है। एंड उसके बाद इसमें से 30 to 35 स्टूडेंट्स के बीच में 5 to 6 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, एंड दिस 5 to 6 स्टूडेंट्स आर attempting for International Junior Science Olympiad, that is none other than the most prestigious examination in the world। ये International Junior Science Olympiad, it is just like a most famous exam in the world। All the students of different countries going to represent their respective countries in the center or in the organizer country। ठीक है, आप सबको फॉरेन टूर भी मिलेंगे, एक तरीके से आप कह सकते हैं, और आपको अपने भारत को रिप्रेजेंट करने का मतलब मौका भी मिलेंगे, जस्ट लाइक अ ओलंपिक के तरह ही आप कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा है बेसिकली। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बहुत जगह पे मतलब रिसर्च पे भी आप जा सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री भी होता है MIT हार्वर्ड पे, ठीक है। तो दिस IJSO आफ्टर दैट, सो दिस इज टोटल थिंग, ठीक है। इसके बाद और कोई स्टेज नहीं, आप समझ सकते हैं। तो पहले तो आप सबको सिलेबस मालूम होना चाहिए, एलिजिबिलिटी मालूम होना चाहिए। एलिजिबिलिटी है क्लास 8 to 10th students eligible, and not only this but also age group is 1st January for NSJS 2024, remind this thing, 1st January 2010 to 31st December 2011, those who are in this age group, they can eligible for this year 2024 NSJS। You should give this examination, you can get a different type of great knowledge from this examination। If you are targeting or optimizing JNEET, this helps you to bring a level, bring a ladder to get your success of to get your success in JEE and NEET। This major effect or major role you can understand in class 11th or class 12th। So you should give class 8 to 10th students, and as well as age group is 1st January 2010 to 31st December 2011। Subjects are regarding physics, chemistry,
बायोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे IIPT वेबसाइट पे दिखाए गए कि सिलेबस है अकॉर्डिंग टू 9th-10th NCERT करिकुलम, बट इन केस ऑफ सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे फिजिक्स का जो IIPT वेबसाइट पे दिखाया गया कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस रहेगा up to NCERT level class 9th and 10th, but it is totally wrong. If you find in the pre-IQs or question papers or past papers of NSGS, then you can get a bit level of 11th to 12th also. So physics and first of all physics कहाँ से करेंगे, तो बायोलॉजी हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी चल रहा है, ओवरलैंड बायोलॉजी या लर्निंग ओवरलैंड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे टीचर्स बायोलॉजी ओलम्पिड के पढ़ा रहे हैं, बट बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जस्ट लाइक 6th और 5th का स्टूडेंट भी कर सकते हैं इजीली। तो बायोलॉजी तो यहाँ से ही आप सब करिए। केमिस्ट्री का कुछ कुछ टॉपिक्स मैं करवा दूंगा और फिजिक्स का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं करवा दूंगा। सो दिस ऑल द थिंग्स आर, कुछ केमिस्ट्री का टॉपिक्स स्पेशल मैं फिजिक्स को ही लूँगा क्योंकि केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक्स ही सफिशिएंट है जूनियर साइंस ओलम्पियड के लिए, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ। So yes, these are the chapters regarding most important chapters for chemistry. You should give this time, okay? यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स, अभी बहुत टाइम है आपके पास। नवंबर पे, हाँ, एग्जामिनेशन होता है नवंबर पे, लास्ट वीक ऑफ नवंबर, हर साल होता है लास्ट वीक ऑफ नवंबर पे। तो ये जो चार्ट है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और केमिस्ट्री का मतलब मैक्सिमम वेटेज ये सभी चैप्टर्स 10 चैप्टर से कवर करते हैं, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये मतलब 10 चैप्टर्स को आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ लीजिए, नीट लेवल से, नीट लेवल का। अब यदि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं वन शॉट पे भी, आप ये सब चैप्टर्स मतलब वन शॉट या फुल शॉट करके पढ़ लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो मैं तो हुई आपके आप सबके लिए, तो आप सब उस टाइम मुझे क्या दीजिएगा, टेलीग्राम डाउट पे या व्हाट्सएप पे, बहुत सारे हमारे सोर्सेस तो है ही। मगर ये है, ये टोटल थिंग है, ये केमिस्ट्री का सफिशिएंट है, बट फिजिक्स का मैं अप्रोप्रिएट कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि फिजिक्स का फुल 11th-12th करना पड़ता है, इसलिए मैं कराऊंगा। ऐसे नहीं कि फुल फुल का मतलब फुल नहीं, इम्पोर्टेंट जो है जूनियर साइंस के लिए, क्योंकि मैं एज ए NSGS क्वालिफायर हूँ, तो मैं जानता हूँ कैसे करना है, तो मैं फिजिक्स को करवा सकता हूँ क्योंकि मैं ऑनली हूँ। इस कारण से केमिस्ट्री का इतना सारे टॉपिक्स मेरे लिए सफिशिएंट टाइम नहीं रहेगा और जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा जो जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है समझ में किसी भी यूट्यूब चैनल से मैं करवा दूंगा, बट 1 to 2 chapters or 3 chapters I can do easily. This is not commitment. This is the right, not commitment. Commitment is to complete your physics. Physics is done by me. Your biology, I had already said you that biology कहाँ से आपको करना है। बायोलॉजी आप खुद मतलब ओवरलैंड जो चल रहा है हमारे सीरीज बायोलॉजी का, वहाँ पे आप अच्छे से देखिए। बायोकेमिस्ट्री आपको स्टार्ट करना है, पहले आप बायोकेमिस्ट्री करिए, सेल बायो करिए, चल रहा है ऐसे पूरे के पूरे टॉपिक नवंबर के पहले ही खत्म हो जाएगा। ये भी हमारा कमिटमेंट है फुल टीम के द्वारा। बहुत बेहतरीन टीचर्स आपको मिलेंगे बायोलॉजी, फिर भी एक क्वेश्चन सीरीज में लेते रहूँगा, बट स्पेशली मैं कराऊंगा फिजिक्स। एक लेयर है आप सबको। बुक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे मुझे बुक्स पूछ रहे थे। बुक्स मैं जो फॉलो किया था जूनियर साइंस के टाइम पे, बायो के लिए तो सिर्फ और सिर्फ मैं NCERT ही किया था। बायोलॉजी के लिए NCERT 11th 12th किया था, ओके। उसके बाद कैम्बल में सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ा था, जेनेटिक्स स्पेशली करा था कैम्बल से। आप सबको PDF तो मिल जाएगा कैम्बल का, मैं बुक नहीं है, जेनेटिक्स में कैम्बल बायोलॉजी से करा था, ओके। केमिस्ट्री में जैसे कि आप देख सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, ये सब मैं RC
आरसी मुखर्जी से मैं करा था, आरसी मुखर्जी, ठीक है। बाकी रेडॉक्स स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे, ओपी टेंडोन से मैं किया था, ठीक है। आरसीएम, ओपी टेंडोन, ऐसे कुछ किताब आपको मिलेंगे, एनावस्थी, ठीक है। ये सब में से आरसीएम या एनावस्थी एक ले सकते हैं, और ओपी टेंडोन मस्ट है नीट के लिए, तो नीट जेई एस्पिरेंट जी, ठीक है। बाकी पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये थर्मोटोमी वहाँ पे ही करा था ओपी टेंडोन से। ये सब पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग मैं करा था, एनसीईआरटी से स्पेशली करा था, और कुछ सीट्स मैं सॉल्व किया था। वो सीट्स आपको मिल ही जाएंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब इंफॉर्मेशन आपको ही मिलेंगे, ठीक है। आईपीसी नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब बहुत कुछ नहीं पढ़ना, जीओसी भी यदि नहीं हो तो तब भी चलेगा, आईपीसी कर लेना, छोटा चैप्टर है। तो ये टॉपिक सब कर लीजिएगा, मैं बुक्स भी आपको बता दिया, ठीक है। फिजिक्स का मैंने करा था AC वर्मा, DC पंडे, तो मैं कहा ऑलरेडी कि फिजिक्स आप ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, फिजिक्स का प्रॉपर लेक्चर पे ही मैं सब कुछ करा दूंगा, बुक्स खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है। बुक्स बहुत सारे टीचर्स कहते हैं, बट नहीं है रिक्वायरमेंट बुक्स का, मैं हूँ तो मैं करवा दूंगा। केमिस्ट्री का कुछ बुक्स मैं कहा आरसीएम या एनावस्थी, एक में से एक की ना मतलब बाय करना ही पड़ेगा, और ओपी टेंडोन आपको बाय करना पड़ेगा फिजिकल का, और पॉसिबल हो तो इनऑर्गेनिक का, क्योंकि अलग अलग पार्ट वाइज आते हैं ओपी टेंडोन। तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक ले लीजिएगा, और इनऑर्गेनिक का बेस्ट है, और इन फ्यूचर के आपको मतलब हेल्प करेंगे। बाकी बायोलॉजी का एनसीईआरटी 11th 12th आपको रीड करना ही पड़ेगा स्पेशली। तो ये सब है टोटली, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर से। और हाँ, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, ये कोई डाउट है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कब होता है? तो रजिस्ट्रेशन होता है सितंबर मंथ पे, और एग्ज़ाम होता है आप सबके नवंबर के लास्ट वीक पे। हम वो डिटेल्स आपको बता देंगे कब रजिस्ट्रेशन ऑन हो रहा है, तब हम वीडियो लेके बता देंगे कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल, यदि अच्छे से आप वीडियो को अभी तक सुन रहे थे, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से वीडियो को लर्न करिए, ये चैट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बायोलॉजी तो हमारे पूरे के पूरे फैकल्टीज है, अब लर्न ऑलरेडी चल रहा है तो लर्न करते रहिए। आपने कॉपी पे नोट्स लिखिए, मस्ट है। मेरा बहुत सारे दोस्त हैं जो नोट्स नहीं लिखे हैं, क्वालिफाई इस कारण नहीं हुआ, बट दिमाग बहुत ज़्यादा है, तो नोट्स आपको बेहतरीन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि नोट्स आप रिवाइज भी कर सकते हैं। सो या अगेन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स से।